तरीके से जो आपके पिछले वाले सब्जेक्ट हैं वो कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रहे हो। कहने का मतलब ये है, इफ यू आर डिसाइडिंग टू रिवाइज फ्रॉम टुमारो, कल आप उठाओगे 2 सब्जेक्ट और यू मे टेक 3 सब्जेक्ट्स, बट वंस यू आर डन विद दीज 2 और 3 सब्जेक्ट्स, आप इनको ड्रॉप नहीं करोगे, यू विल नॉट ड्रॉप इट। When again you will pick 2 or 3 subjects, these 2 or 3 subjects will be revised in parallel with that. तो आपको ध्यान रखना है 20% of the time you will invest in the revision of the topics that you have already revised. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20% of the time for your revision will be invested for those topics which you have already revised. कहने का मतलब है शुरुआत वाले टॉपिक आपके मिस नहीं होने चाहिए, it should not be missed. So your timetable should be such that entire syllabus must be completed in less than 5 days before the conduction of an examination. Moreover, 20% time should be given for revision of those topics which you have already revised. Next point says, the major difference or major problem which you face in your mains examination is QCAB. From 2017, the answer booklet which is given to you, is termed as QCAB. The abbreviation है, QCAB is question cum answer booklet. What is the meaning of this question cum answer booklet? You must be familiar with this. You must have given several tests. Question cum answer booklet means here specified space will be given to you below the question to write the answer. QCAB का मतलब है कि आपको हर सवाल के नीचे ही जगह दी जाएगी आंसर लिखने के लिए। कहने का मतलब है अब जगह की शॉर्टेज है आपके पास, you have limited availability of the space to write the answer. It means like earlier, means prior to 2017, you can write your answer in as many number of pages, in as many number of words, but now you have to restrict the answer. और बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है ये यूपीएससी का, ये पता करने के लिए कि आपको सवाल का जवाब टू दी पॉइंट आता है या नहीं आता. इट इज अ वेरी कैलकुलेटिव मूव विच इज बीइंग मेड बाय यूपीएससी टू एनालाइज whether you know the answer to the point or not. कहने का मतलब है स्कूल और कॉलेजेस में जब हम कहानियां बनाते थे, वो कहानी नहीं बनानी है आपको. No stories to be cooked up to write the answer. To the point, you have to write the answer in the limited space which is given to you. If I show you the sample, so if I show you the sample answer sheet that you will get, it will be somewhat like this. अगर मैं आपको sample answer sheet दिखाऊं, it will be somewhat like this. On left corner there will be space for question. On left corner there will be space for question. On right corner there will be space for rough work. In between question will be written, so statement of the question will be mentioned, and below it only you have to write the answer. So this is the space which is available to write the answer. तो कहने का मतलब है ऊपर सवाल होगा, नीचे जगह दी हुई होगी आपको आंसर लिखने के लिए. तो आपको ध्यान रखना है, अब पहले जो कन्वेंशनल शीट्स आती थी आंसर लिखने के लिए वैसी नहीं मिलेंगी. अगर आंसर रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन गया, अब आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते किसी दूसरी जगह पे. इसीलिए मैंने बोला ये कैलकुलेटिव मूव है यूपीएससी का, ये पता करने के लिए कि आपको टू दी पॉइंट आंसर आता है या नहीं आता, कि आप वहां पे आंसर खुद सोच के या बना के लिख रहे हो वहां पे. तो इसीलिए ये बुकलेट इंट्रोड्यूस की गई है. हेंस दिस बुकलेट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड हियर. तो ध्यान रखना है आपको ये. तो इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? इसको ओवरकम करने का तरीका है अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट ऑन क्यूकैब ओनली, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि लिमिटेड स्पेस में आंसर कैसे लिखा जाता है, दैट हाउ टू राइट द आंसर इन द लिमिटेड स्पेस. The first important point of today's session is take proper care that answer sheet will be QCAB type. It means it will be question cum answer booklet. कैसी दिखेगी आपको उसका थोड़ा फ्रेमवर्क मैंने दिखा दिया है. That framework is being shown here. Next point says space is restricted, so no stories. Answer to the point. To the point आपको आंसर लिखना है वहां पे. इसके लिए मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है. डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम आपको कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है. मैंने एक टेबल बना के आपको दे दी है. डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट इट. और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है. फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 5 मार्क्स, एट मैक्स यू हैव टू राइट द आंसर इन 100 वर्ड्स. अगर प्रॉब्लम 5 नंबर का है आपको आधा पेज ही मिलेगा और उसमें आप 100 वर्ड्स लिख पाओगे. इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 10 मार्क्स, यू हैव टू राइट द आंसर इन 150 to 200 वर्ड्स. अगर 10 मार्क का प्रॉब्लम है
आपको 150 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में अपना आंसर खत्म कर देना है. तो टू द पॉइंट यू हैव टू राइट द आंसर. इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 15 to 20 मार्क्स, यू हैव टू एक्सप्रेस योर आंसर विद इन 250 to 300 वर्ड्स. इससे ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना. मोर ओवर एक्सीड कर भी नहीं पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू एक्सीड. रीजन बीइंग जगह खत्म हो जाएगी. तो कहने का मतलब है शुरू में कहानी मत बनाना. डोंट कुक अप दी स्टोरीज इन दी स्टार्टिंग इटसेल्फ. टू दी पॉइंट मेंशन दी आंसर. रीजन बीइंग space is limited. If you run short of the space, you will not get additional sheet to write your answer. आपको कोई additional sheet नहीं मिलेगी उस आंसर को वापस लिखने के लिए. तो सेम प्रॉब्लम इज फेस बाय अमृत. तो अमृत जो प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं वो आपको फेस नहीं करनी है. इसलिए एक मैंने आपको बेसिक गाइडलाइन दे दी है. अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ मेनी वर्ड्स शुड बी रिटन इन योर पर्टिकुलर आंसर. सेम फॉर जेईई मेंस, सेम है. नेक्स्ट, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सर पेन कौन सी यूज करें. बहुत सारे डाउट्स आते हैं. एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्क द डाउट. तो ये चीज भी मैंने लिख के दिया आपको. यूज सिंगल कलर पेन ओनली. कहने का मतलब है वहां पे आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं इंप्रूव करनी. जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो कि आपने लाल कलर से हेडिंग लिखी, फिर उसको अंडरलाइन किया, फिर नीले कलर से आपने उसको एक्सप्लेन किया, फिर काले कलर की पेन से वापस अंडरलाइन किया बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर हरे कलर की पेन से डब्बा बनाया. ऐसा कुछ नहीं करना. You have to use only single pen. Reason being space is limited and time is limited. So either use blue pen or black pen. दोनों में से कोई एक पेन यूज कर सकते हो. So either use blue pen or black pen. To make the diagrams, you can use pen also, you can use pencil also. अगर आपको डायग्राम बनाना है, आप पेन भी यूज कर सकते हो, पेंसिल भी यूज कर सकते हो. प्रेफर यूजिंग पेंसिल कि अगर कोई गलती हो जाए आप उसको रब कर पाओ. ड्रॉ दी डायग्राम्स करेक्टली विद फ्री हैंड. अगेन मैं फोकस कर रहा हूं फ्री हैंड पे. अगर कोई डायग्राम ऐसा है जिसमें स्केल की जरूरत पड़ रही है तो बना लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना डायग्राम के अंदर. डोंट वेस्ट योर टाइम इन डायग्राम. डायग्राम शुड बी सच दैट यू आर एबल टू कन्वे व्हाटएवर यू वांट टू से. डायग्राम आपका बस ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बात को, आपके मैसेज को कन्वे कर दे. जरूरी नहीं है आपका डायग्राम स्केल पे हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर डायग्राम शुड बी ऑन एग्जैक्ट स्केल. तो एज फार एज पॉसिबल मेक द डायग्राम विद फ्री हैंड. अगर बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हो तो आप अपनी स्केल या रूलर यूज कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट जो मेजर डाउट निकल के आता है, अवॉइड लास्ट स्टेप मिस्टेक्स. बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, पूछते हैं स्टूडेंट्स. एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आस्क दिस डाउट कि सर स्टेप मार्किंग होती है क्या. क्या स्टेप मार्किंग होती है क्या. अगर किसी से भी आप ये पूछते हो स्टेप मार्किंग होती है और वो आपको ये बताता है कि हाँ स्टेप मार्किंग होती है, इसका मतलब है कि एम्बिगुअस स्टेटमेंट है ये. रीजन बीइंग आंसर शीट इज नॉट बीइंग शोन. आंसर शीट शो नहीं की जाती. इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती. फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इफ वी एनालाइज, लेट अस सपोज योर प्रॉब्लम इज ऑफ 20 मार्क्स. आपका प्रॉब्लम 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल इज ऑफ 20 मार्क्स. 50% मार्क्स विल बी गिवन टू यू ओनली इफ यू गेट द एग्जैक्ट आंसर. इसमें जो 50% मार्क्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. So let us suppose there are 10 steps. All the 9 steps you have done correctly. You have done the mistake in the 10th step. आपके 50% मार्क्स वही चले जाएंगे. 50% of the marks will be taken away from that particular problem. So don't rely on step marking. Rely मत करो step marking के ऊपर. और फिर भी on the basis of the experience it can be referred that 50% of the marks will be deducted if you don't get the correct answer and rest of your calculation is correct. But for my side आपको स्टेप मार्किंग के ऊपर रिलाय नहीं करना है. आपको अपना सवाल पूरा ही सही करना है. यू हैव टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम करेक्टली अप टू द लास्ट स्टेप. नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ, सेलेक्ट योर प्रॉब्लम वेरी वाइसली. अपनी प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करनी है. और इस बात को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी. फॉर दैट हाउ मेनी प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मस्ट बी नोन टू यू. सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, first 5 to 10 minutes must be devoted dedicatedly to simply analyze what problems are to be answered by you. अब इस बात को समझने के लिए you should know there will be total 2 sections in your paper. So there will be total 2 sections in your paper. It means you will be getting 8 problems. आपको 2 section मिलेंगे. So there will be 2 sections. Problem will be numerical also. Problem will be theoretical also. There will be 2 sections having total of 8 problems. Each section will be having 4 problems. हर section में आपको 4 problem मिलेंगी. Weightage of each problem will be same, 60 marks. हर problem का weightage same होगा,
60 मार्क्स का. So if I show you the section, if I show you